ನಾನು ರೈತನೇ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಒಂದು ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರನೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕತೆ. Is going to like corporate section and businessman, but nobody want to become a farmer. And after future, farming sector will be destroyed. So we trying to show that movie the farming sector want to grow, and India is a agricultural country. So our youth, our generation, new generation want to become a farmer, and in new technology for farming sector. So that will be is our country proud. So we are trying to show this movie an inspiration for farmer. So thank you. You will enjoy this movie. You show this movie, see this movie, watch this movie, and enjoy the movie. Thank you. Thank you. Thank you. I am also currently farmer. I educated, and my 6 friends are in foreign countries. My 100 friends, that means they are super class 1 officers in Maharashtra. My father is also super class 1 officer in central government but I not needed government job because I am not interested in that field. In 34 years, I had seen about farmers because I also living in rural area. From day to day, from morning to evening, we sees the future about farmers, youth, and rural life. I wrote this story which includes real life of farmers, real life of rural areas, and real life of today's youths, because all over India currently jobs issue very sincere, and that second problem, farmers suicide, because as today's atmosphere is very poor for farmers. At this moment, farmers life is very struggling life, and our concept, because India's most jobs gives agriculture sector, that issue is more important for the future of our country, because agriculture gives food to us. So my first aim is that from our film, for success of farmers, how can help us from me, from my knowledge, from my ideas. We wrote these issues in these films, and for writing of script near about 5.5 years has been passed, and near about 7 years had been gone for making these films. So many people made film for money, but I made film for the future of agriculture, the future of farmers.
the future of youths and the future of rural areas, because money is today, money future day, but food can give by only and only farmers. So for farmers life, for agriculture and for youths which living in rural areas, we made that film, and I am making film for first time. I am not related to completely in the film industry's life, because so many mistakes are and on stage I am first speaking in English. Mr. Nagaraj ji told me, Ravi ji, because of our tongue Kannada, you can't speak in Kannada, so please speak in English. So few thoda I tried speak with English, but abhi supposed to be for chance in talking Hindi, so mostly issues with shared with me, but abhi so अभी कैसा है कि बहुत सा बात याद करने को ये नहीं है। मैं 1 मिनट मेरी रिक्वेस्ट है, जो मेरी दिल की बात है, मैं आपको हिंदी सबको समझ में आती है ना, तो क्या है, असल में मैं भी बहुत पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन क्या पहली बार मैं स्टेज पे बोल रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ एक एज ए ह्यूमन बीइंग सिर्फ 2 मिनट आप हिंदी में सुन लीजिए, बाद में आपको जो ड्रॉप बनाना आप प्लीज बनाइए। एक है कि ये फिल्म सिर्फ किसान को बचाने के लिए, कि सिर्फ किसान का लाइफ बचाने के लिए और किसान के बच्चे को बचाने के लिए और आज के यूथ को बचाने के लिए मैंने ये फिल्म बनाई है। पैसा मेरा इशू नहीं था। ये फिल्म, मैं कोई अंबानी अदानी टाटा नहीं हूँ, मैं भी एक किसान का बच्चा हूँ। सिर्फ मेरा एक सपना है कि मैं सवेरे से शाम तक जो किसानों को, यूथ को, रूरल एरिया के बच्चों को देखता हूँ, वो दुख दर्द मैंने खुद स्क्रिप्ट में लिखा है। ये स्क्रिप्ट मैंने लिखी है। मेरा एक सपना था कि आज मुझे जो लाइफ और ये जो प्रॉब्लम सहनी पड़ती है, कल के फ्यूचर के बच्चे को, कोई किसान को सहना न पड़े, और ये सपना साकार करने का एक मेरा सपना था। और इसके लिए मुझे 5.5 साल स्क्रिप्ट लिखने के लगे, 1.5 साल फिल्म बनाने के लगे। बहुत सी बातें मेरे लिए नई थी, लेकिन ऐसा कभी महसूस नहीं होने दिया कि रवि नागपुरे ने पहली बार फिल्म बनी है। और दूसरी बात, खुशी की बात है कि मैं पहली बार भी फिल्म बनाने के बावजूद भी मुझे मेरे फ्रेंड्स, मेरी टीम ने इतना कोऑपरेट किया कि कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि रवि जी आप पहली बार फिल्म बना रहे। मेरा एक ही सपना था कि यहाँ का किसान बच्चा, वो भी कारपोरेट सेक्टर में जाए, वो भी अच्छी खेती करके एक अच्छा लाइफ जी सके, क्योंकि देश में अगर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाला अगर बिजनेस है वो खेती है। खेती बची तो किसान बचेगा, और किसान बचा तो देश बचेगा। ये सपना साकार करने का काम हमने किया है, क्योंकि आज के लोग, यूथ क्या करते हैं, पढ़ाई किस लिए करते हैं, जॉब के लिए। पढ़ाई किस लिए करते हैं, बिजनेस के लिए। लेकिन कोई ऐसा बच्चा नहीं सोचता कि मैं आज अच्छा पढ़ के खेती करूंगा। तो हमने ये फिल्म में ये बताया कि आपको बिजनेस के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए पढ़ाई जरूरी है, लेकिन खेती के लिए भी, अच्छी खेती करने के लिए भी पढ़ाई जरूरी है। ये हमने ये फिल्म में बताया है, ताकि हर बच्चा, किसान का भी बच्चा अच्छा पढ़े और अच्छा पढ़ के अच्छी खेती करे, ताकि किसान बचे, खेती बचे, और यहाँ पे अच्छी रोजगार उपलब्ध हो, और यहाँ भारत सुजलाम सुफलाम हो। क्योंकि किसान और खेती बचे तो हमारा देश बचेगा, और देश बचाने के लिए यहाँ का किसान बचना जरूरी था। और इसके लिए हमने ये फिल्म बनाई है। ये फिल्म आज के युवाओं को, ये फिल्म पूरी फैमिली को
और सभी लोगों को देखने लायक हमने बनाई है। और मेरी एक आशा है, और एक किसान के बच्चे को का सपना साकार करने के लिए और एक ग्रामीण के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए और एक अच्छी सोच को और हमें बनाने का मौका देने के लिए सभी मेरे भाइयों ने, सभी मेरी बहनों ने, सभी मेरे युवा मित्रों ने ये फिल्म देखनी चाहिए। थैंक यू। And her roots are very different. She has been literally born from like a silver spoon. She's got everything, as well as how she falls in love, and for that she jumps into all the like challenges, and she accepts it. Also, how she has a different POV for farmers first. She has a POV like it's all because of industrialization, our country is growing and all, and there's no role of farming as much we know. And she used to rant about farmers, but later on when she meets Shiva, she gets to know that no, the primary role of growth of country is based only because of farmers. So yeah, that's all. दूसरा एक इशू बताने का रह गया, सबसे हमारे महाराष्ट्र में ये जो भी बातें ये फिल्म में बताई है विच इज कम्प्लीटली रियली, यानी ये बोलते ना सत्य कथा पर आधारित है ये सब बातें। बहुत ऐसा सिनेमा ये सत्य कथा नहीं। ये दूसरा इशू हमारे आए कि ये लास्टली जो सिंसियर इशू है वो बताने का मैं रह गया। हमारे महाराष्ट्र में एक बड़ी बात है, चाहे कितना भी रईस हो, अगर किसान लड़का है तो उसे लड़की दी नहीं जाती और प्यार तो करने का दूर ही है, उनकी शादियां नहीं होती। तो हमने, क्योंकि मेरे एरिया में मैं कितने लड़के लोग मुझे, मैं जब गाड़ी से उतरता हूँ रोते हैं, बताते कि भैया कैसी भी लड़की बताओ लेकिन मेरी शादी कर। मैं बोलता हूँ मोहम्मद से कि भाई तू लड़की को चॉइस कर, देखने की बात आती है तो मैं तेरे साथ आऊँगा। तो ऐसी हालत है। तो और दूसरी बात, अगर झाड़ू मारने वाला 10 फेल भी लड़का है ना तो बड़ा रईस आदमी उसको लड़की देता है। ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। इसलिए एजुकेशन का ट्रेंड भी, लड़की की क्या सोचिए, साला मैं डिग्री पढ़ता हूँ, इंजीनियर होता हूँ, लेकिन मेरा बाप किसान है, मैं किसान हूँ, तो शादी के लिए लड़की अगर नहीं मिलती, ये कितनी दुर्भाग्य की बात है। और एक आधा चपरासी जो झाड़ू मारता और संडास भी साफ करता और 10 फेल है, उसको बहुत अच्छी लड़की अच्छे घर की मिलती है। तो हमने ये फिल्म के जरिए एक अच्छे किसान को भी अच्छे घर की, रईस घर की लड़की मिलनी चाहिए। और वो खुद ने, हमारा लड़का नहीं, हीरो नहीं मांगता है, लड़की खुद बोलती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ किसान से शादी करूंगी, क्योंकि इससे एक किसान के बच्चे में जोश लाने का हमने प्रयास किया है। क्योंकि हमारे एरिया में ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है, आजकल किसानों को लड़की नहीं देते। बहुत मतलब एक गांव में 10-10, 15-15 युवाओं को, यानी अच्छे खाते पीते घर के रहने के बाद भी शादी का बहुत प्रॉब्लम है। यानी लोगों का एक सपोज टू भी बताने की बात है, तो किसान के लड़के के तरफ देखने का जो सोच है वो पूरा बदल गया है। ये सोच को भी हमने बदलाने का प्रयास किया है, ताकि किसान के लड़के अच्छे पढ़े और खेती करें और उनको अच्छी लड़कियां मिले। ये सोच भी हमने ये फिल्म के माध्यम से लोगों को बताने की ख्वाहिश की है। क्योंकि आज सब जॉब, उसको कैसा भी रहे, बेचारा हमारा किसान स्मार्ट रहे, लड़का रहे, अच्छा पढ़ा भी लिखा रहे ना, तो भी मतलब उसको लड़की मिलना नामुमकिन हो गया। ऐसे हालत हमारे महाराष्ट्र में और प्रॉपरली मेरे विदर्भ में ऐसा देखने को मिला है। और ये इशू भी हमने ये फिल्म में लिखा है, क्योंकि हमारा किसान भाई, किसान दोस्त अच्छा पढ़े, खेती करे और उनको भी अच्छी लड़की मिले, ताकि उसका भी सपना साकार हो। ये इशू भी हमने इसमें लिखा है। यानी ऑल मतलब जो हमारा इश्यूज है जो रियल लाइफ में, वो इसमें हमने बताने का प्रयास किया है। थैंक यू। सो सब लोगों ने सब कुछ तो बता ही दिया फिल्म के बारे में। मैं अपना कैरेक्टर आपको बताना चाहता हूँ। फिल्म में मेरा नाम है शिवा, जो कॉलेज गोइंग बॉय है, जिसके सपने हैं कि मुझे जॉब करना है, मुझे कंपनी में कुछ ना कुछ काम करना है, लेकिन मुझे खेती नहीं करनी है। तो लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है कि उसे मजबूरन खेती करनी होती है। तो उसे क्या चीज़ें उसे फेस करनी पड़ती है अपनी लाइफ में, वो हमने इस फिल्म में दिखाया है। और ख़ास करके न्यू जनरेशन जो है, जिनके पास नई टेक्नोलॉजी है, फॉर एग्जांपल AI टेक्नोलॉजी, हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो फार्मिंग में हमें मदद हो, किसानों को मदद हो।
तो वो सब टॉपिक हमने इस फिल्म में कवर की है। ओके, थैंक यू। ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ